तुलसियाल जी हैं, शुभश्री महापात्रा हैं। शुभश्री महापात्रा असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं हिंडाल्को में, उड़ीसा क्लस्टर में हैं, कॉर्पोरेट क्लस्टर में हैं। और हमारे साथ तुलसियाल जी हैं जो कि इंटरनेशनल लॉयंस में हैं, यूपी टेक्सटाइल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। हमारे साथ मनीषा जी आ गई हैं, ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं। मनीषा, वेलकम इन आवर फोरम। और दीपक जैन जी का बहुत आपको छोटे शब्द में समेटना कठिन है। दीपक जैन जी फेडरेशन ऑफ, सर आप ही बता दीजिए, मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रही हूँ। मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इकोनॉमिक फील्ड में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी है। और दिगंबर जैन समाज के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, जो उनके प्रमुख संस्था है, उसके राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पास। सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में विशेष रूप से काम करता हूँ। वैसे संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। परिवार सारा संघ से और भाजपा से जुड़ा हुआ है शुरू से। इकोनॉमिक पैशन है आज आपके साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। FII के डायरेक्टर का हम स्वागत करते हैं। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि साइकोलॉजी ऑफ लेडी हार्ट, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस विषय पे बात करने के लिए। मैं बता चुकी हूँ, अभी फिर आगे हम लोग रिपीट कर देंगे। शुभश्री, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आपके लिए आ रहा है। सो हाउ यू डिफाइन अ लेडी? I think in this topic, this psychology of lady heart, two prominent words are here. One is lady and another is psychology. So firstly, how you define a lady? Who is lady? I would rather take it in other way, that when you suggested the name, that the psychology of a lady heart. So if you go by words, psychology is always related to mind, and heart, it is no way related to heart. Okay. So, but then when I started thinking of how this has been correlated, that psychology of lady heart, somewhere I could understand that, a lady always thinks first from her heart and then from her mind. So that's how maybe you thought of coming up with this wording or this jargon, that the psychology of a lady heart, and that convinced me to prepare myself. Initially, I took 2 days to, why this name has been given, to find out. And to me, lady is the question that you asked is, how do I define a lady? A lady is the genesis of every being in this earth. So, you cannot imagine anything on the earth without a lady. So that's how the genesis of anything on the earth is lady for me. Yeah, obviously, but when we, when we think about a lady, first picture, first figure, first architect of the God is come in our mind is mother. Definitely. Psychology of lady. But you are working since last, what is it, total professional life, Subhashri? Almost 17 years. 17 years. In 17 years, in total 17 years, have you any statistic about the real in corporate world, really? Sorry, I missed few words, maybe because of the bandwidth. Can you please repeat the? Yeah, sure. क्या 17 सालों में आपने ये लगा आपको कि एक कॉर्पोरेट में, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एक इंडस्ट्रीज में वाकई महिलाओं की इमोशनल शोषण भी कभी-कभी होता है?
why only in corporate world? I have been, the society in which we have been brought up, the females are being not taken care properly, not only in the corporate sector but in the families also. What has happened, it has always been understood that the man is the hunter and the female is the rearer. The female is the person in the house who takes care of the kids, the family members. She is always the gatherer. She gathers things, feeds the kids, feeds the family members, and it is the man who goes out and earns. But nobody considers the amount of energy that goes to gather and rear the kids and the family members, the take care of the family members. And because of that, even if today women have stepped out of their house to earn for the families, still the household activities are still sticking to the female only. You will find very less men who share equally the household activities with the woman. Though women have shared equally the activities at professional front with men, whereas men have not equally taken the responsibility of the household activities. Abhi bhi, it is expected in India, especially abhi bhi, it is expected that the bahu will come back from office and cook for the family. She will come back and take care of the children. She will come back and order all the vegetables, the groceries, and take care of the maid, understand what the maid needs, pay for the maid. Again, she has to manage the time. Nobody will manage their responsibilities and their activities with her. No, actually, you are from corporate world. That's why I'm asking corporate questions. After BTech or completion of management courses, they employ in industrial sector or corporate world, and they entered with lot of maturity, professional maturity as well as academic maturity. Personality wise, they are quite capable to handle the situation, but due to our HR policies or due to some, Women's Act, we have lot of n number of reported cases of mutual harassment in the term of emotions, in the term of sexuality. So, what do you think as AGM HR? What do you think? How many? What are the statistics? Really, is it real data? See, these are rather now whatever data we are getting are real, because now girls are becoming vocal for their rights. Girls are vocal for what is happening with them. Earlier, rather, things were being suppressed. If you see, now in last, when I joined in 2002 the corporate world, and today if you see, so when I joined rather my engineering college, and today if I see the world, things have changed drastically. So now the girls are vocal, they are talking about the issues that are happening with them, but during our days we were not those that vocal. And these girls have become vocal. The girls, the women are talking about their pains. They are coming out loud with whatever injustice is happening with them, because of the policies that has been laid. At lot many places we have tried to, in industry especially, we are trying our level best to bring them, give equal opportunity to both the genders. And maybe because of this, yes, a number of cases have gone up because reporting has started. Earlier, there was no reporting. Now, girls are becoming vocal. They are fearless and they are ready to report the cases. But still, in India, our society is yet to come up in a full-fledged way. We are still brought up in a society where, complaining about any harassment that has happened to you
is considered to be something, maybe your family's image will be degraded in the society. You may not be considered for a suitable partner if your parents are looking for your marriage or something like that. So we still have that fear. Maybe we have not come up 100%, though we have come up to a bigger extent, but yet we are not equally confident like the men. Right, very true, very true. I'm also actually I'm a trainer, as you know, I'm corporate trainer, and in so many batches, so many classes, my learning classes, I I just agree one thing, that is ki if you are not equally competent. Equally competent is there. If you are not equally have management competency, so harassment is very easy tool to replace your competency and attention seeking tool. Is it true or not? What do you think? That can be one part, but harassment to suppress you, of course it is still there, because many policies have been laid by the government, by corporate, but until it is taken it is taken care both judicially as well as what do I say, rather I would use a word that legally and judicially. That means there has to be a law, and there has to be people to take care of those laws. Unless until it is done both legally and judicially, these policies won't be we won't be able to implement these policies 100%. At many places I have also seen many policies which have been framed properly, but they are not implemented properly. I'll tell you many things. The small statistics I'll give you, that only 4% of the female are seen in the top management in any organization you go. We talk about female empowerment, we talk about gender equality, we talk about gender sensitivity, but we are still not able to see females sitting at top positions. Only 4% females sit at the top positions. And unless until you have number of people sitting at that position, who will advocate for you? Right. This is something we are also facing, and we are also struggling. But yes, then all the policies that has been led, all the facilities that has been brought in, it should not become a NATO. That means no action and talk only. For the sake of putting it forward, you have put it forward to showcase to the world, whereas our beliefs have not changed. We still have the old belief. So we need to come out of this NATO state and take care both legally and judicially of each and every policy that we lead. Very nice. तुलसियान जी, एक बात मेरे मन में आ रही है कि हालांकि टाइम तो अभी भी आपका ही है, कि आपके समय में दीपक भाई आपके लिए भी है ये, आपके समय में जो महिलाएं थी, जो साइकोलॉजी थी लेडी हार्ट की, और आज के समय में जो साइकोलॉजी चेंज हुई है, वो क्या है? What are the similarities and differences? पहले तुलसियान जी बोलेंगे या पहले मैं बोलूं? दीपक जी आप बोलिए, मैं एक बार बोल चुका हूँ। अच्छा देखिए लकी दीदी, ऐसा है कि एक तो मैं बोलूंगा हिंदी में, हिंदी में बोलूंगा तो दिल से निकलेगा, बिल्कुल, और इंग्लिश में बोलना हो तो दिमाग का दरवाजा खोलना पड़ता है उसके लिए। वो मुझे ज्यादा जमता नहीं है। एक तो ये सारी चर्चा और ऐसे देश में होनी, जिस देश में हमारे सामने एग्जाम्पल कौन कौन से रहे हैं। मैं 5 मिनट का समय लूंगा आपका। वो एग्जाम्पल अपने सामने रहने चाहिए, क्यों? वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट वो नहीं होना चाहिए जो सन 47 में हमारे पास विरासत में हमको आया है। हमारे सामने
सीता माता का उदाहरण है। सीता माता किस लिए? इसलिए नहीं कि 14 बरस जेल में, वो जंगल में भगवान राम के साथ वनवास काट के आई, बल्कि इसलिए कि घर से निकलने के बावजूद भी लव कुश को इतना ट्रेन किया उन्होंने कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वो पकड़ सके। ऐसी क्षमता उन बालकों में उन्होंने निर्माण की। यही सब चीजें तब भी थी, अलग बदला हुआ रूप था, लेकिन सीता माता ने दोनों बालकों को ऐसा निर्माण किया कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा किसी में पकड़ने का साहस नहीं था, और उन्होंने पकड़ लिया तो राम की सेना में छुड़ाने का साहस नहीं था। ये एक चीज है। हमारे सामने सती सावित्री इसी देश में हुई, हमारे सामने रानी दुर्गावती इसी देश में हुई, महारानी लक्ष्मीबाई इसी देश में हुई, और महारानी अहिल्याबाई होलकर वो भी इसी देश में हुई, जिन लोगों ने अपने जीवन से, ऐसा नहीं कि वो समय कोई स्वर्ण काल था, आज से ज्यादा पाबंदियां उसके ऊपर थी, उस समय ज्यादा पाबंदियां थी, और हर चीज में किसी ना किसी रूप में फीमेल्स के ऊपर कंट्रोल था, पुरुषों का कंट्रोल था। इन लोगों ने अपने उदाहरण अपने जीवन से प्रस्तुत किए हैं। हमारे सामने विद्यावती, विद्यावती नाम सुना होगा शायद आपने, भगत सिंह की माता थी, जिन्होंने कहा एक भगत सिंह क्या हुआ, 2 और होते तो उनको भी मैं वार देती थी इस देश के ऊपर। उनकी मेंटल हेल्थ की चिंता उस समय किसी ने नहीं की होगी शायद। हमारे सामने एक और उदाहरण है, शंकराचार्य को किसने पराजित किया? 15 दिन मंडन मिश्र के साथ शंकराचार्य का और वाद विवाद चलता रहा, तर्क वितर्क चलते रहे, मंडन मिश्र को पराजित किया शंकराचार्य जी ने। उसके बाद कमान संभाली उनकी पत्नी उदय भारती जी ने, शंकराचार्य को उन्होंने पराजित किया। तो विद्वत्ता में, गुणों में, शारीरिक क्षमताओं में, राजनीतिक क्षमताओं में, किसी भी युग में हमारे देश की नारी कभी दोयम दर्जे पे नहीं रही। मैं दूर नहीं जाता, आज भी इंदिरा जी आयरन लेडी थी, हमारे देश के प्रमुख के पद पे रही, और इतना सुंदरता से उन्होंने और स्ट्रॉन्ग हैंड करके देश का संचालन किया, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास अपने उदाहरणों की कमी नहीं है। ये कानून बनाना, ये करना, वो करना, करो ठीक है, लेकिन अपने अंदर जो हमारे संस्कार, जिनको लेकर के हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, सन 47 नहीं होना चाहिए, हमारे सामने वो उदाहरण लेकर के चलना चाहिए जहां उन्होंने उस विपरीत परिस्थिति में समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए। नहीं, एक चीज है भाई साहब, हमेशा मेरी इस मंच पर संघ के साथ भी, मैं अखिल भारतीय प्रशिक्षण प्रमुख हूँ और संघ के साथ भी मेरा बड़ा झगड़ा होता है कि एक बात है कि हमें समय के बदलाव को स्वीकार करना होगा। सुभश्री, यू अंडरस्टैंड हिंदी? सुभश्री, you are mute. Yeah, I understand very well. I am married in Bihar, don't worry. I understand. तो दीपक भाई, आपको बताऊं कि कल के सेशन में हमारे यहाँ के IMA के प्रेसिडेंट थे, जो कि ENT सर्जन भी हैं, और कल उन्होंने बताया कि डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला ने, कि वो रिकॉर्डेड भी है, कि हमारे पास महीने में एक ENT सर्जन के पास 10 से 12 केसेस आते हैं जिन महिलाओं के कान का पर्दा फटा हुआ होता है बिकॉज ऑफ हस्बैंड स्लैप। तो आज के समय में, पहले के समय में साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हुआ करते थे, हमारी चाची, मौसी, फैमिली के और लोग, पड़ोस वाली आंटी, जिससे हमने मन की बात कही और उन्होंने समझा दिया। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं था काउंसलिंग का। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज का जो सिनेरियो है, आज की जो बदली हुई चीजें हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस रखना, काम करना। सुसाइडियल रेट जो है, केसेस बढ़ गए हैं, जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते। सुसाइडियल केसेस कहीं रिपोर्ट नहीं होते,
सुसाइड किया और सुसाइड करने के बाद 10 सुसाइड्स में से 2 पता भी चल पाते हैं सुसाइड है, बाकी तो पता नहीं। अब तो सब कोविड ही कह देते हैं, कोविड हो गया, डेंगू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको बंद कर दीजिए, देखना नहीं है, चला गया। तो आज के समय में हमें उन उदाहरणों को भी ढूंढना है जहां महिलाएं स्लम से निकलकर दिन भर जी तोड़ मेहनत करती हैं। शाम को, मैं ऐसा नहीं कह रही, रैशनल ऑपोजिट्स हैं हर चीज के। शाम को एक ऐसा पति जिससे उसकी शादी हो गई है, जो उसके बच्चों का पिता है, जो बुरी आदतों का शिकार है, उसको झेलना भी है, सुबह की तैयारी भी उसके दिमाग में है, बच्चों की भी, अपने काम की भी, और सोना भी है ना। तो ऐसी स्थिति में, इस परिदृश्य में भारत सरकार की तरफ से मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए, हम क्या करें विमेंस के साथ लिए, कि हाउ वी अपलिफ्ट मेंटल हेल्थ ऑफ विमेन। देखिए, सिवाय संस्कार के और कुछ नहीं दे सकते आप। आपकी आउटरीच, जितना भारत सरकार को मैं जानता हूं, समझता हूं, सरकार की आउटरीच सिवाय कॉन्फ्रेंसेस के आगे नहीं जाती, या कानून बना लेते हैं। कानून की रीच कितनी है और उसकी आउटरीच कितनी है, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। हमारे पास सिवाय संस्कार देने के और कोई तरीका नहीं है कि आप उन महिलाओं को और उनके परिवारों का कल्याण कर सकें। कानून से आप नहीं रोक सकते। वेश्यावृत्ति का कानून बने भारत में कितने वर्ष हो गए, रोक पाए क्या? जुए का कानून बने कितने वर्ष हो गए, रोक पाए क्या? किसी भी बुरी आदत का हमने कानून बनाया और अपने कर्तव्य की हमने इतिश्री कर ली, तो हमने कानून पास कर दिया पार्लियामेंट में, अब देश सही हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ना। आप ये अभी जो आज परिवार को संस्कार दे सकती है माता, कोई और नहीं दे सकता। पति को, बिगड़े हुए पति को रास्ते पे ला सकती है, उसकी वाइफ ही ला सकती है, और कोई नहीं ला सकता। अब वाइफ जो है वो बाकी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो गई है। वाइफ जो है एक बिगड़े हुए बिगड़ैल पति के रिहैबिलिटेशन सेंटर है। मनीषा जी आपसे थोड़ा सा जान लेते हैं, आप बड़ी देर से शांत हैं। आप आयकर अधिकारी हैं, और आयकर अधिकारी का मतलब अपने आप में प्रणाम होता है है ना। हाँ, और काफी बड़ी अधिकारी है, बहुत प्रभावशाली भी है, और इनका व्यक्तित्व भी बड़ा चुंबकीय है। मनीषा जी, आप कैसे देखती हैं इस विषय को? अगर मैं बात करती हूँ कि साइकोलॉजी ऑफ लेडी हार्ट क्या है, एक स्त्री का मन क्या चाहता है? मैम, एक स्त्री का मन सबसे पहले तो शांति चाहता है, कंपैशन चाहता है, अफेक्शन चाहता है, लव चाहता है। एक किसी भी सिनेरियो में, चाहे आप एज अ हाउसवाइफ हो, आप एक ऑफिस में हो, आप घर में हो, आप परिवार में हो, सबसे इम्पोर्टेंट है एक शांति, कंपैशन, लव और रिकॉग्निशन। सबसे इम्पोर्टेंट एक रिकॉग्निशन भी चाहता है वो। अगर आप एक माँ हैं, आप घर के लिए सब कुछ कर रही है, आप एक गृहिणी आप कर रही है, आप कोई आपको एक रिकॉग्निशन दे दे कि अरे आपने बहुत कुछ किया, आपकी वजह से बहुत कुछ हुआ। आपको देखिए, घर की एक हाउसवाइफ को उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। आप यहाँ कुछ भी करते रहिए। अगर आप देखिए, हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, 2 एप्रिसिएशन हम लोग का अप्रेजल होता है, हम लोग को ईयरली अप्रेजल मिलता है ना, कि आपने साल भर काम को, आपको 10 में से आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको घर में तो आपको कोई मार्क्स देना तो बहुत दूर की बात है, कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है। तो एप्रिसिएशन भी बहुत जरूरी है ना, अप्रिसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे एक चीज लगती है, मेरे ख्याल से तुलसिया जी भी एग्री करेंगे, मुझे एक चीज लगती है कि हम महिलाएं, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि लोग कहते हैं आजा बेटा खाना खा ले, अरे बाय बाय, यू आर नॉट सेइंग आजा बेटी खाना खा ले, है ना। मुझे अपने बेटी को बेटों की तरह बनाना है, अरे इसका मतलब हमने पहले ही मान लिया कि बेटी नंबर 2 पर है। नहीं मैम, मेरी तो एक ही बेटा है, एंड आई वांट हिम टू बी लाइक अ गर्ल। वेरी नाइस। आज मेरा आई हैव अ सन ऑफ 23 years old, और वो सारे घर के वो काम कर सकता है जो एक लड़की कर सकती है। अरे मैम, मेरे हस्बैंड की भी माँ बन जाइए विवेकानंद की तरह। वो खाना बना सकता है, वो घर की मेरे साथ सफाई। आपको यकीन नहीं होगा, आई हैड गॉन थ्रू अ सर्जरी इन मार्च,
एंड उस समय फिर कोविड का स्प्रेड हो गया. आई डोंट हैव मेड एनीथिंग एंड उसने मुझे 1.5 महीना पूरे घर को संभाला है, खाना बनाया है, खिलाया है, सफाई की है, ईच एंड एवरीथिंग. हालांकि वो अच्छा स्कॉलर है, ही इज गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स, MS उसने किया है एंड ही इज पर्सनल PhD राइट नाउ. लेकिन मैंने उसको बचपन से वो सारे काम कराए जो एक घर में कैंडिडेट को करने चाहिए. आई एम नॉट बाइज जेंडर बाइज बीइंग अ गर्ल और अ बॉय. मैंने उसको उस तरीके से पाला कि जब मैं जो काम कर सकती, या तुम्हारे पापा जो काम कर सकते, वो दोनों काम तुम कर सकते हो, वो दोनों काम तुम्हें करने हैं. बहुत बढ़िया. मैं तो मैम, मेरा तो सिंपल फंडा यही है. और मैं I absolutely am with you, ma'am. I'm absolutely with you. You know, how you train your kids, how you upbring your kids decides the future society. Yes, ma'am. बिल्कुल, How the society is going to be in future. Again, if you know, the females are considered to be the rearers or the caretakers, then it is totally again on us how we have trained our boys. Yes. I would, you know, I have been very lucky. Like ma'am, I have also 2 sons, and my elder one is hardly 12 years old. So my elder one, last 4 months, I was away from, you know, it was last 2 years, they have not been going to school. So I got an opportunity to go to my husband at Indore, and I have dropped both my kids there. 4 months, it was my son who was taking care of the house, elder son. Because we have not trained him that this is a job which a female will do and a male won't do. Very nice, very nice. But here I would like to point out few things that Mr. Dilip came up with, that yes, we do have good examples in from our history, like Sita or, you know, Rani Lakshmi Bai. But Mr. even Deepak, after they being so capable, they were pointed out. Mr. Deepak. Sorry, I'm absolutely, it's my mistake. Mr. Jain, I apologies from my side. But we do have good examples from history. But if you see the amount of appreciation they have got, you know, if I go by Sita, Sita was blamed for staying alone in the, nobody, till now, I think you are first or second person who is considering that the way she has brought up her kids. But people pointed out immediately that she was alone without her husband in the jungle for certain years. We don't know from where the child came. Why this? When nobody pointed out on Sri Ram when he was alone in the jungle, why fingers were pointed out on Sita? If you see, sir said that, you know, why we need policies and laws to protect female. I would say that, sir, again, same NATO, no action and talk only. Yes. You said that NATO laws are there, but still we have not, still there are incidences of violence, still there are incidences of mishappenings with female. Because we have been only talking about that, we have never taken action. Till date in India, for a rape case, it takes years to go and, you know, fight that case. The girl was physically raped on one day, only for a single day, but mentally she and her family gets raped every time they go to the court. Yeah, for years, yes. Anyway, back to, you know, I'll tell you a few facts. Woman mental illness, what are the reasons? Normally we consider that, you know, because of hormonal factors, there are certain mental instability in the woman. Maybe it is during the, you know, during the pregnancy, postpartum, or during the menopause. That is one part. But majority of the mental illness among the females is because of gender determinant. The differential that we show for power and control among the gender. Ladka hai to ye karega, ladki hai to ye karegi. Gender pressure created due to multiple roles and unremitting responsibilities of care and others. Ladki hai, she has to play the role of a mother, she has to play the role of a caretaker, she has to again go to the office and earn money. Ladka hai to he will only go to the office and earn money and come and rest at home. Anyway, gender specific risk factors are there. Subhashri, life events are there.
Sorry, I'm interrupting you. Actually I'm just going to straight to Mr. Tulsian. तुलसियान जी, आप बहुत सारे महिलाओं को जानते हैं और ये यूएसपी है आपकी कि, और मुझे जो लोग कानपुर से जुड़े हैं वो ये मानते हैं कि तुलसियान जी की जैसी मैच्योरिटी लोग मंदिरों में सुबह पूजा करते समय मांगते हैं। आप बहुत सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशन, नारी शक्ति संगठन, एम्पावरमेंट और न जाने क्या क्या ढेरों चीजों से जुड़े हुए हैं, जहां पर वेरिएशन ऑफ रैशनल ऑपोजिशन ऑफ लेडी मूड्स आपको दिखता है। सो हाउ यू मैनेज एंड व्हाट आर योर फाइंडिंग्स अबाउट द लेडी हार्ट, लेडी साइकोलॉजी? तुलसियान जी। थैंक यू लकी जी। मेरा काफी व्यूज अलग है। पिछले सालों में जो भी था वो अपनी जगह है, और अगर आज हम बात कर रहे हैं तो हमें कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करनी चाहिए, और कंटेम्प्रेरी इंडिया बहुत चेंज हो चुका है। आज के दिन कोई भी महिला अगर आप कुछ गलत करेंगे तो उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर वो आपको रिएक्ट करेगी तो अगर आप उस रिएक्शन में आ गए तो आपको भारी पड़ेगा। इसलिए बहुत रेयर लोग हैं, गलत लोग हैं आज भी, और वो लोग किसी ना किसी तरह अपने मन की कर लेते हैं, लेकिन वो परसेंटेज मेरे ख्याल से बहुत कम हो चुका है। 2-4-5% रह गया जो आज से 10 साल 20 साल पहले। और हम लोगों के बीच में महिलाएं जो बाहर आ रही हैं उनको लोग उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। उनको एक जरूरत होती है कि फैमिली के बाहर सपोर्ट मिले, क्योंकि उनके हस्बैंड्स के पास टाइम नहीं है कि उनको सपोर्ट कर सके। उनके हस्बैंड्स के और कई काम हैं। उनका कई बार ये भी है कि साइकोलॉजी दोनों की अलग होती है। लेडी करना चाह रही है सोशल वर्क, हस्बैंड अपने काम में बिजी है, तो ऐसे में उनको सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मैंने एक चीज देखी है, अगर उनको किसी भी लेडी को जो सोशल वर्क कर रही है उसको आप थोड़ा भी सपोर्ट देते हैं तो उसके लिए वो एक बहुत बड़ी एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो उसको वर्किंग को बढ़ा देता है। कई बार लोग बड़ी आसानी से किसी महिला के को बदनाम करने लगते हैं। उस समय अगर उसके साथ हम लोगों की तरह की कोई भी पर्सनालिटी जुड़ी हुई होगी तो आम आदमी की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी उस महिला के खिलाफ कुछ कह सके, क्योंकि वो महिला कोई भी नॉनसेंस लेने के लिए तैयार है। मैं अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि आज की महिला पहले से बहुत बदल चुकी है। मेरे एक दोस्त थे, बहुत एजुकेटेड थे, उनकी वाइफ बहुत एजुकेटेड थी। उसकी वाइफ को मालूम पड़ा कि उनके हस्बैंड जब टूर्स पे जाते हैं तो कुछ गलत करते हैं, तो उसने हस्बैंड को एक नोटिस दिया। उसके बाद में पहले नोटिस के बाद में उसने उसको कह दिया आप तुम मेरे घर में नहीं रहोगे और यू कैन ब्रिंग प्रॉब्लम टू द हाउस जहां जहां आप जाते हैं। और शी डिड नॉट अलाउ। उनका एक लड़का है, दोनों के पास आता जाता है, लेकिन उसके हस्बैंड को फिर समझ में आया कि मैं जो कर रहा था वो कितना गलत था। इसी तरह महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं और काम कर रही हैं, न वर्क प्लेस पे न घर पे कोई न्यूसेंस नहीं करती, और कोई मेरे ख्याल से आज के दिन अच्छे घर में कोई ऐसा मेल नहीं जो अपने घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। मान लीजिए घर के अंदर कोई वुमेन अगर 80% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, मेल 20% ले रहा है हाउस होल्ड वर्क में, तो वो बढ़ रहा है, वो घट नहीं रहा। और आज के दिन काफी बॉयज हैं जिनको कभी ना कभी हॉस्टल में रहना पड़ा है, वो लोग खाना बनाते हैं, और मैंने देखा है कि कई मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं नहीं हूँ बाई चांस, वो बहुत अच्छे को, और जब वो खाना बनाते हैं तो अपनी वाइफ से भी बेटर खाना बनाते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ी साइकोलॉजी तो है कि भाई खाना रोज हम ना बनाए, और इसी तरह लोग अपने घर के कामों में लेडीज के साथ खुद सपोर्ट करते हैं। एक फाइंडिंग है, एक फाइंडिंग है एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर। दीपक जी आप भी सुनेंगे समझेंगे तो कुछ निकल पाएगा उससे। हमारे साथ मनीषा जी जुड़ गई है। मनीषा द्विवेदी जी, आप जयपुरिया स्कूल में हिस्ट्री की फैकल्टी हैं और बहुत रेनाउंड टीचर है, बहुत एक्सपीरियंस है, डॉक्टर मनीषा द्विवेदी। और डॉक्टर चित्रा सिंह हैं, आप लोग भी विजिबल हो जाइए। मंजू तिवारी जी हैं, मनीषा द्विवेदी जी हैं, सुभश्री हैं, सब लोग दिखते रहिए, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, रंग बिखरते हैं। हेलो। डॉक्टर चित्रा सिंह तोमर एसएन डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है एजुकेशन की। मनीषा द्विवेदी जी सेवा गाथा की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मेरी छोटी बहन भी हैं।
मंजू तिवारी जी अभी विजिबल नहीं है, आप बहुत अच्छी होम मेकर हैं और एजुकेशनिस्ट भी हैं। एक चीज उभरती है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा, एक लंबे समय की प्रैक्टिस में, चाहे वो कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पर हो, इंडस्ट्रियल ट्रेनर के तौर पर हो, या साइकोलॉजिस्ट के तौर पे हो, या एक लेखक के तौर पर हो, कि सारे बवाल की जड़ ये कुकिंग है। मुझे लगता है कि जब हम लोग अपनी किसी रिसर्च पेपर के जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस पे जाते हैं, जो हमारी इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन है, उसमें हमारी बातें होती हैं, तो बहुत बार ये फाइंडिंग निकल कर आई कि महिलाओं का बहुत बड़ा स्ट्रेस का जो कॉज है, रेजिंग कॉज है, फैक्टर है, वो ये किचन है। किचन का काम नहीं है, किचन की जो जवाबदेही है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जहां पर आप आंसरेबल हो, इस ड्यूटी को कोई शेयर नहीं करना चाहता। हम खाना साथ में बनवा देना चाहते हैं, बाहर से अरेंज कर देना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेट आंसरेबल और अकाउंटेबल वो जो महिला है वो है। मैं कल बहुत सिंपली किसी से बात कर रही थी कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि हमने कितने बोरे गेहूं की रोटियां बनाई हैं, कितने कुंतल आलू बनाए हैं आज तक अपने जीवन में, सारी साइकोलॉजी, दीपक जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। दीपक जी, सारी साइकोलॉजी बदल जाएगी, पूरी देश की राजनीति बदल जाएगी जिस दिन महिला इस आंकड़े के साथ आ गई। कितनी हल्दी, कितना जीरा, कितने तेल, कितना दूध, कितना दही हम लोगों ने मैनेज किया है ना। रोंगटे खड़े हो जाएंगे पूरे समाज के ये सोच के। अगर हम मान लीजिए 500 ग्राम आटे की रोटी भी डेली बनाते हैं, तो इतनी तो मेरी मैथ अच्छी नहीं, मैथ की फैकल्टी लानी पड़ेगी ढूंढ ढांड के, है ना। रियली ये स्ट्रेस वहां से भी शुरू होता है। मुझे लगता है कि साइकोलॉजी ऑफ लेडी हार्ट का मतलब है कि जिस घर में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो महिला है, लेडी होने का मतलब है आपका अपना सिग्नेचर, आपके घर की महिलाएं आपकी फैमिली का हस्ताक्षर है, जो सबसे डिफरेंट है, जो आपकी यूएसपी है, जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है, जो बता रही हैं। लेकिन महिलाओं के साथ भी मुझे लगता है कि हम जितने भी केसेस रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्टेड केसेस, मेल और फीमेल को अगर हम देखते हैं, तो मेल बड़े कम है, फीमेल्स बहुत ज्यादा है, जिनको एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, इमोशनल डिसबैलेंस भी है। ऐसा क्यों? हम इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रहे कि डिप्रेशन खत्म हो जाए? मनीषा जी, आपको क्या लगता है? मनीषा द्विवेदी जी, आपको क्या? दीदियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम पहले, और मैं थोड़ा लेट आई क्योंकि थोड़ा सा ऐसे काम थे, लेकिन अभी साइकोलॉजी ऑफ द लेडी हार्ट, तो ये बहुत बड़ा विषय है और इसके 2-4 शब्दों से आंसर आना बहुत मुश्किल है। मुझे याद है 1989 की, मैं कैसी छोटी सी बात, जब बात हो रही तो परिचर्चा में दिमाग में आया। तो मैं रिपब्लिक डे परेड में दिल्ली में थी, तो डॉक्टर किरण बेदी, अभी सभी को पता है उनका नाम, तो वो वहां पर थी। तो हम लोग को याद है, उन्होंने अपने एक डिबेट में एक बहुत बढ़िया बात बोली, और उन्होंने कहा कि हमें आगे, मतलब महिलाओं से लेकर ही थी, उन्होंने कहा हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें अपना बहुत समय खाना बनाने में नहीं देना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट थे उस समय, और हमें लगा रहे ये कैसे कह दिया, हम लोग तो भाई खाना बनाते हैं, मम्मी भी हमारी जॉब में चली गई, तो शाम को हम लोग को बनाना ही होता है कि भाई बेचारा आई है मम्मी, ठीक है मेड है जो है, लेकिन अगर भाई बहन भूखे हैं तो भाई पूरी भी बना लेनी है, भाई बहनों से कहना है कि भाई तुम कितनी खाओगे, तुम कितनी खाओगे। और खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अभी जैसे इतने साल हो गए, करीब 30 साल मुझे हो गए ऑलमोस्ट नौकरी करते हुए, खाने से महिलाओं का ऐसे कुछ छूट नहीं पाते। अब सबके पास बहुत धन है, संपत्ति है, लोग मेड हायर कर लेते हैं, मेड रख लेते हैं, लेकिन एक शिकायत करते हैं कि भाई देखिए मेड खाना बनाती है लेकिन हमें पसंद नहीं आता है। तो और हस्बैंड या कोई भी जो घर में है वो चाहते हैं कि भाई आप थोड़ा हाथ लगा दीजिए खाने को, तो थोड़ा थोड़ा बढ़िया खाना बन जाएगा। तो वो प्यार जो है ना खाने को लेकर, और वो बढ़िया खाना बन जाता है। तो महिलाओं को समझना, उनके मन को समझना, समाज, हमारा देश आपको पता है दुर्गा का देश है, रानी झांसी और दुनिया का सारा जितना, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या इसी देश में महिलाओं को लेकर जब कभी आता है। पार्लियामेंट में भी आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा हमें रिजर्वेशन भी नहीं दिया जाता। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन यही है कि इन चीजों को हम प्यार से हैंडल कर लें
अच्छे से रहे सबके साथ में, और एडजस्ट तो होता ही है धीरे धीरे। आप देखिए कि सब लोग मिल बांट के महिलाओं को कहीं ना कहीं तो प्यार से उनको ट्रीट करते ही, अपने घर में तो सभी करते हैं मुझे लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा मेरे मन में आता है। जो महिलाएं नशे की तरफ बढ़ रही हैं, जैसे दीपक जी गुड़गांव में रहते हैं, शुभश्री जहां उड़ीसा क्लस्टर में हैं, वहां जो इनके जीटीज आते हैं वो ये नोटिस करती होंगी, मैं जितनी भी कंपनीज में जाती हूँ वहां जीटीज जो लड़कियां आती हैं दबा के ढंग से पीती भी है, सिगरेट भी फूकती है। वेबिनार चल रही है। क्या ये मेंटल हेल्थ को जो है हिट नहीं करता, ये हमारी ये हैबिट्स जो हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली? यहाँ पर मैं दीपक जी के बिल्कुल साथ हूँ कि जो संस्कार हम छोड़ते चले गए, कि एक चीज थी कि नहीं महिलाओं के लिए बड़ा था, सबके लिए, लेकिन महिलाएं नहीं, हम तो नहीं। मेरे पास कई बार ट्रेनिंग के बाद जो है वो पार्टीज होती है और कहते हैं कि नहीं आप ड्रिंक, अरे क्या बात करनी, आप लेती नहीं होगी ड्रिंक? मैंने कहा नहीं लेती। अच्छा, हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेती भाई, नहीं लेती। तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमारा सोशियो कल्चरल जो चेंज आया है इस देश में, हम ट्रांसमिशन की स्थिति में है, भारत बदल रहा है, हम ये मानते हैं, भारत बदलने में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, तो ये जो आदतें हमारी बदली, इसने भी हमारी मेंटल हेल्थ को हिट किया है। दीपक जी? मेरे विचार थोड़े से डाइवर्जेंट हो सकते हैं, और दूसरा मैं थोड़ा रिस्क नहीं लूंगा। आज 7 महिलाएं हैं इसमें, नहीं, आप लीजिए। मैं और तुलसियान जी अकेले बैटिंग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बाउंस कर जाएगा। अरे नहीं सर, बिना रिस्क के जीना क्या, लीजिए। क्या है कि हमने संस्कार तो छोड़ दिए, कहीं पर भी संस्कार की बात नहीं है, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे कोई सी भी पॉलिसी देख लो, संस्कार एक ऐसा एलिमेंट है, फालतू मान करके उसको हमने छोड़ दिया। वो पकड़ लिया वेस्ट ने, अपनी मार्केट कल्चर हमको थमा दी, और औरत जो है ना उसको केवल शरीर के एंगल से देखने लग गए। वो मार्केट की चीज हो गई, बाजार की वस्तु हो गई, एडवर्टाइजमेंट की वस्तु हो गई। ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है सारे समाज के देखने सोचने में, और हमारे लिए बहुत घातक है ये। आप ये देखिए कि परिवार का निर्माण कौन करेगा, समाज का निर्माण उसके माध्यम से जो होना। अगर महिला संस्कार नहीं देगी बच्चे को, बच्चे का अधिकांश समय उसके पास निकलता है, फॉर्मेटिव ईयर्स उसके पास निकलते हैं, तो कौन देगा उसको संस्कार? क्या कहीं उसकी क्लास में पढ़ाई लिखाई होगी? अनपढ़ महिला भी संस्कार देती है अपने बच्चे को, भाई चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी, राम राम करनी है बुजुर्गों को। ये सब संस्कार मिलते हैं, माँ से ही मिलते हैं, कोई अलग से उसकी क्लास नहीं होती। मछली के बच्चे को पैदा होते ही तैरना आ जाता है। तो मेरा ये आपसे फिर निवेदन है, वापिस अपनी जड़ों की तरफ चलिए। आपने शुरू किया था उसका वुमेन हार्ट, वो क्या चाहता है। तो मुझे जब आपने सुबह ये संदेश मुझे दिया तो मुझे अचानक दिल डूब गया। मैंने कहा ये 41 साल हो गए, मेरे को अभी तक पता नहीं चला, अगर मैंने कुछ बोल दिया और पत्नी ने सुन लिया तो मुझे फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखिए यही तो होता है। अभी फिर वो वुमेन हार्ट क्या चाहता है से बदली तस्वीर, मेंटल हेल्थ की, परिवारों के संस्कार की, वो सब चीज उसके बदलते हुए आयाम है। अच्छा चलिए मैं पूछ ही लेती हूँ। हम अपने कोशिश करते हैं। आप पूछेंगे मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं, यू हैव टू टेल मी। जो प्रश्न आप पूछने वाली है उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं, वो नहीं पूछने वाली हूँ जो मैं आप बताया आपको। मैं देखिए, बहुत अच्छा समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, सरकार ने कहा आर्मी में कमांडो ट्रेनिंग तक बच्चियों को मिलने लगी है, फाइटर पायलट्स हमने बच्चों को बनाना शुरू कर दिया। क्या देश में कभी ऐसा हुआ? ऐसा परिवर्तन नहीं आया। उसके अनुसार समाज ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू किया। अब गर्व से बोलते मेरी बच्ची फाइटर पायलट है, प्लेन की कमांडर पायलट महिला होती है, प्लेन में उसके लिए तालियां बजती हैं। ये समाज में परिवर्तन आ रहा है, और ये मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करूंगा कि हमको वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा
वो संस्कार ही होना पड़ेगा। आप सीता माता की तरफ नहीं जाओ, किसी की तरफ नहीं जाओ। ये सब की समस्या में संस्कारों की कमी हमारे अंदर वो बड़ी भारी चीज है। अच्छा भाई साहब, आप हमारे से सुभाश्री दीदी ने कहा, मैं आपकी बात अभी 1 मिनट और चुरा रहा हूं आपसे। हमारे से सुभाश्री दीदी ने कहा कि जो कॉर्पोरेट में ऊपर महिलाएं नहीं दिखती, हर जगह सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होता, हर जगह फीमेल बायस नहीं होता। मैं ये जानता हूं कि महिलाओं के अंदर दे डोंट हैव हंगर फॉर सक्सेस। जिस दिन उनके अंदर आगे बढ़ने की हंगर, भूख अंदर से जागृत होगी ना, कोई उनको रोक नहीं सकता। मेरी अपनी बेटी का मैं उदाहरण देता हूं। आज अमेरिका की टॉप 300 कंपनीज में से एक कंपनी में वो डायरेक्टर फाइनेंस लगी है। सिर्फ एमबीए ही तो थी, कंप्यूटर इंजीनियर थी, एमबीए थी, कड़ी मेहनत की उसने 12 वर्ष, अभी वो डायरेक्टर फाइनेंस लगी है। उसको आगे बढ़ने का चाव है, शौक है, कड़ी मेहनत का, ये सब चीज तो उसके अंदर लगती है, उसके अंदर जैसे। लेकिन एक चीज और है जिसको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, वो ये कि हम इसको गुण नहीं मानते। खाना बनाना बोलते हैं बेकार का काम है, 3rd ग्रेड काम है, इसमें मेरा प्रोडक्टिव टाइम जाया होता है। मैं एक बात आपको कहूंगा, वुमेन आर द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स आउट ऑफ द लॉट। आपके घर में माँ ने खाना बनाया, कभी नमक कम हुआ, कभी मिर्च कम हुई, कभी खटाई नहीं है, ऐसा हुआ? आप खाने पे बैठ गए और कभी अंदर से चपाती 2 के बाद हो गई, इधर मैंने आटा गलत गूंद दिया था, थोड़ा कम रह गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 मेहमान ज्यादा आ जाए तो भी माँ आटा गूंद के ले आती है। वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट और उसके अंदर मैनेज करने की कला वो महिलाओं के अंदर है। ये हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उसके फ्लिप साइड है, जब हम उसको उसका मान देने लगेंगे तो उसी घर के अंदर महिला जब किचन से निकलेगी ना, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी कि मैंने जो किया रसोई में, 3 मेहमान आ गए, फालतू आ गए एकदम से अचानक से, और मेरे को इसका सत्कार मिल रहा, मान मिल रहा है। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, थकावट के साथ साथ मुस्कुराहट भी होगी। ये अपने लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन हमारी भी ये दायित्व है कि हम अपने घरों में एक ही चीज ऐसी है, संस्कार, परस्पर एक दूसरे का सम्मान, जब वो करना सीख जाएंगे तो बहुत सारी कमियां ऐसी हैं जो आज कानून की तरफ भागते ना, इस चीज का कानून होना चाहिए, इस चीज का कानून होना चाहिए। किस का कानून लाओगे? अरे अपने मन को क्यों नहीं संभालते? जो आपका बच्चा बिगड़ता है, आप अपने बालक को क्यों नहीं संभालते? कितने कानून लाओगे? नहीं ला सकते। लाओगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। संस्कारों की कमी हमारे अंदर तक बैठ गई है। भाई साहब, ये तो हो गया एक शुरुआती बात कि भाई ठीक है, हमारा एक हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं इस धारणा के साथ, है ना, कि ऐसा होना चाहिए, तो जैसा स्टिमुलेशन होगा वैसा रिस्पॉन्स हो जाएगा। हमारा मनोविज्ञान ये कहता है कि आप ईंटा मारेंगे तो हम ईंट मार देंगे, वही वाली उठा के जो आपने मारी थी। आप फूल भेजेंगे तो हम उस फूल को साफ करके तुलसीराम जी को दे देंगे। तुलसीराम जी, हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा वो फूल साफ करके मैं आपको दे दूंगी, है ना, क्योंकि आप 2 ही लोग हैं, 2 में ही बांटना है ना, तो दे दूंगी। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये जो विषय है, इसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आयुष मंत्रालय एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सजेशंस दे रहे हैं। आप पुरुष होने के नाते मिस्टर दीपक जैन और मिस्टर श्री गोपाल तुलसियान का क्या कंट्रीब्यूशन होगा महिलाओं की मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करके? आप अपनी जिम्मेदारी माँ सीता, माँ सावित्री, अपनी माँ, अपनी पत्नी, दूसरे की पत्नी से छुटकारा नहीं पा सकते इस उदाहरणों के साथ। आप क्या करेंगे ये बताइए। मैं तुलसियान जी से पहले सुनूंगा भाई साहब, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स दूंगा। हाँ लकी जी, मेरा ख्याल ये है कि देखिए महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं, उसको कोई रोक नहीं रहा है, कोई रोकना चाहता भी नहीं है। कोई 2-4-5% लोग ऐसे हों जो रोकना चाह रहे हों या पीछे से लूज टॉक कर रहे हैं
उनकी भी आज मुंह पे बात करने की हिम्मत नहीं है। वो और जमाना गया, आज के जमाने की बात बताइए, आज के जमाने की, वो पिछला जमाना था। कहीं भी महिलाओं के ऊपर कोई जाति हो, समाज के रूप में सब लोग अगर एक रहेंगे तो आम आदमी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। कोई बहुत ही क्रिमिनल आदमी है, वो तो किसी के साथ भी क्राइम कर सकता है, अब उसी में हिम्मत रह गई। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप यू आर टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आप लॉयर्स क्लब के अधिकारी हैं, आप 5 महिलाओं से मिले किसी सम्मेलन में और आपको लगा कि 2 महिलाएं ऐसी हैं जो थोड़ी सी डल है, थोड़ी सी नर्वस है, थोड़ी सी लो है, थोड़ी सी डिप्रेसिव माइंडसेट की है, तो आप करेंगे क्या? नहीं, हम लोग उनसे बात करके हिम्मत दिलाते हैं, कहीं भी कोई मिलता है। मेरे को कोई भी अगर कोई नई लड़की, कल अभी कुछ दिन पहले एक लड़की थी, बहुत अच्छा गा रही थी और मुझे लगा यार ये 20-25 साल की लड़की है, तो मैं उसको अपने साथ कम से कम 7 कार्यक्रम में ले गया और मैं पिछले 14 दिन से देख रहा हूँ उसको कोई ना कोई कार्यक्रम में रोज बुला रहा है। तो इस तरह की लेडीज को तो रियली में इनकरेज करना चाहिए। हम लोग समाज सेवा में देखते हैं कोई छोटा सा कार्यक्रम करता है, उसको लगता है कि 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं, वो भी मेरे पास से करने पड़ेंगे। अगर आप उसको थोड़े से रिसोर्सेज देंगे तो थोड़े दिन बाद वो अच्छे कार्यक्रम करने लगती है। और इसी तरह कई लेडीज को घर से निकलते हैं तो उनको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जब वो 1-2 बार निकलती है और उसके पति को भी पता लगता है, परिवार को पता लगता है ये अच्छा काम कर रही है, तो फिर उसको निकलने देते हैं। जो टैबूज थी वो जब सक्सेस मिलती है तो टैबूज बड़ी जल्दी खत्म होती हैं और सोसाइटी को और गवर्नमेंट को इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाना ही चाहिए। आपको सच बताऊं, मैं 98 से ट्रैवल कर रही हूँ अकेली, ना मुझे किसी ने छेड़ा, ना मुझे किसी ने भद्दे कमेंट किए, ना मुझे किसी ने धोखा दिया, ना मेरा सामान। एक बार मैं डीएवी में आ रही थी, तब मेरी इन्विजिलेशन में ड्यूटी लगी थी, तो गोल चौराहे का आपको याद हो तब वो फ्लाईओवर नहीं बना था और मेरे पास 800 कार थी, तो उसने मेरी चेन खींचने के लिए हाथ डाला और मैंने तुरंत गाड़ी का शीशा चढ़ा के उसको जो चाउ चक्कर लगाए। बस एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के साथ महिला इस बातों से परेशान है। महिला परेशान है उन चीजों से जो पासेस होते हैं, कमेंट्स, जहां पर जैसे कहा कि बच्चा माँ की जिम्मेदारी है, अच्छे इनपुट्स का क्रेडिट पूरी फैमिली शेयर करती है, खराब इनपुट्स आज भी माँ के जिम्मे चले जाते हैं। आज भी कल के सेशन में एक लेडी थी, वो कहती है मेरा हस्बैंड जो है हबीब चला जाता है, बड़े आराम से हेयर कट लेके चला आता है और मैं सैलून की बात करती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कोई पाप कर रही हूँ। 50 बहाने होते हैं मेरी मदर इन लॉ के, मेरी फैमिली के लोगों की, अरे क्या जरूरत है, ठीक ठाक तो हो, क्या है, ये है वो है, घर बुला देते हैं, बगल वाली तो है वो बहुत अच्छी थ्रेडिंग कर लेती है, अरे बाल तो चौराहे का नौवा भी काट लेगा। तो ये जो छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें मैडम, महिलाओं के और सब फुल रहते हैं, किसी में आप अपॉइंटमेंट के बगैर जा नहीं सकती हैं। वो भाई साहब वो वाले हैं जिनको आपने हिम्मत दी है, उनसे फुल है। हम लोग तो 12 बार जाते हैं साल में ज्यादा से ज्यादा और वहां लाइन भी नहीं होती है। तो सुभश्री कुछ रेस कर रही है, कोई क्वेश्चन रेस कर रही है बहुत देर से। सुभश्री, डॉक्टर चतुर्वेदी, आई हैड अ पॉइंट दैट क्या हुआ कि हिस्ट्री में ऐसे चीजें हो चुकी हैं जिससे महिलाएं काफी पीछे जा चुकी हैं। सो अभी है कि टू ब्रिंग देम टू दैट इक्वालिटी पोजीशन, यू हैव टू गिव देम सर्टेन इक्विटी, ताकि दोनों बराबरी के लेवल पे आए, तब हम बात करें कि हाँ भाई ऐसा। मैं अभी आज की स्टेट में अगर देखें, गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 10 years you will see that men are the next generation men are sharing household activities with their partners, equally sharing the household activities with their partners. But abhi bhi we are having men from the past, from the previous generations. So इन चीजों को इक्वालिटी पे लाने के लिए we are talking about law, we are talking about policies, because this is as a part of the equity to the woman to bring them to the equality. Okay, so that is why it is required. And coming to mental health condition, if you ask me, in India, mental health is I'll say that the condition is worst for both male and female. खाली औरतें ही क्यों, ठीक है, the number of females being affected is more than men, but इनका जो भी इलाज हो रहा है या जो ट्रीटमेंट इनको मिल रहे हैं,
दोनों के लिए ही खराब स्थिति में है। आप अगर मुझसे पूछे स्टैटिस्टिक्स बताएं तो पिछले 2018 में हम लोगों ने 528 बिलियन रुपीस लिया था एज हेल्थ केयर, हमारा जो बजट, उसमें से हमारा था 5 मिलियन ओनली फॉर मेंटल हेल्थ केयर, और हमने खर्चा कितना किया? 50 मिलियन ओनली। जिसके चलते क्या हुआ, इन 4% भी नहीं है, जीडीपी का 4% भी नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप देखें 0.05% ऑफ आवर हेल्थ बजट वी आर स्पेंडिंग ऑन आवर हेल्थ केयर। मतलब अगर जैसे डब्ल्यूएचओ नहीं, एक स्टैटिस्टिक्स बोलता है कि हम लोग सिर्फ 33 पैसा खर्चा करते हैं पर मेंटल हेल्थ पेशेंट। हमारे पास इवन द फैसिलिटीज आर not there, either it is infrastructure wise, either it is medical the paramedical staff wise or the medical staff wise। जहां होना चाहिए हमारे पास 1 लाख में more than 3 psychiatrists, psychologists and 3 nurses and 3 social workers होने चाहिए, वहां आज की डेट में per lakh of patient we have only 0.3 psychiatrist, we have 0.07 psychologist, we have 0.12% nurses per lakh of population, which is very sad. And we are way behind any other country, developing country in the world. क्योंकि हम लोगों का ये जो सहने की शक्ति हो गई है, ठीक है, not only for females, I am advocating for the men also. Are we really serious about, मतलब if I am feeling depressed या डिप्रेशन में मैं जा रही हूँ, इट्स अ नॉर्मल टेंडेंसी, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। नो, कुछ दिन बाद ठीक नहीं होगा, ही नीड्स अ हेल्प, ही और शी नीड्स अ हेल्प, वी नीड टू कम। अभी भी इंडिया में मेंटल हेल्थ इज अ सोशल ट्रॉमा। अगर हम किसी को बोल दें कि मैं मेंटली सिक हूँ, मतलब आपको लगता है कि आप पागल हैं, and people consider पागल है, mental है क्या as a slang in India। अरे आप जब कभी भी साइकोलॉजी ऑप्ट करने का टाइम आता है स्टूडेंट्स का, तो लोग कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद वैसे ही मत हो जाना जैसे पेशेंट्स को डील करो। हाँ, है ना? तो चलिए वी आर we are at finishing stage, so I need 5 very fundamental, basic, strong advocacy point for government, how we enrich women's mental health globally, not only in India. Actually, the global conditions are not very different from India. They also have very mental trauma in each and every layer of the population. So definitely we require a global change for mental health. So start from Deepak ji, because he is our key speaker today. So Deepak ji, start with very conclusive, very specific to the point, only 5 points. आप सरकार को कह रहे हैं कि ये कर दीजिए, ठीक हो जाएगा सब। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को at this point of time, if you ask me, I may not be in a position to suggest कि ये कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा, but yes, I can tell one thing, that mental health of women cannot be considered in isolation from social, political and economical issues. Just a minute, Subhashri, just a minute. Mr. Deepak Jain is waiting. So after his presentation, मैं एक्चुअली हेल्थ के ऊपर काफी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स बनाने का मुझे मौका मिला था, लेकिन मैं नहीं ये डेटा में नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक डेटा की स्टडी हमारी बाहर आएगी 1%, आधा परसेंट, 0.25%, 0.08% कुछ भी लिखेंगे तो 10-20 करोड़ और बढ़ जाएंगे। तो ऐसे फ्लोटिंग पैरामीटर्स के साथ आप कोई सिस्टम नहीं डिजाइन कर सकते, क्योंकि आपका कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। आप बोलते मैंने 500 डॉक्टर इस साल हरियाणा स्टेट में बनाए, पता चलता है
कि उसमें से 300 डॉक्टर क्लरिकल काम के लिए सूटेबल है, 200 डॉक्टर ही केवल मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए सूटेबल है। तो आप 500 का डेटा कैलकुलेट करोगे या 200 का डेटा कैलकुलेट करोगे? इसी तरह से पॉपुलेशन कहीं की कहीं जाती है। अब मेंटल हेल्थ और एक हम बोलते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, एक हम बोलते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द मेडिकल ट्रीटमेंट, ये हमको सोचना पड़ेगा। वो एक प्रिवेंटिव है, एक क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज है। तो प्रिवेंटिव अलग चीज है, क्यूरेटिव अलग चीज है। मेंटल हेल्थ का अधिकांश संबंध जो है आपके उन संस्कारों से है जो बचपन में आपको पढ़ते हैं। क्योंकि मैं जापान में, हमारा FII का चैप्टर है, हमारा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उनके साथ होता है। वो लोग ये एजुकेशन कॉलेजेस पे कम, प्राइमरी एजुकेशन पे अधिक खर्चा करते हैं। बिल्कुल जो उनकी फॉर्मेटिव स्टेजेस है, आज उनके 4th क्लास के बच्चे को पता है यदि अर्थक्वेक आ रहा है तो मुझे अपना बस्ता लेकर के या बस्ता वहीं छोड़ करके कहाँ जाके खड़े होना है, आग लग रही है तो मुझे क्या करना है, वो बच्चे को मालूम है। हमारा बच्चा जो है पापा की तरफ देखेगा, पापा क्या करना है अब। तो अभी ये हमारे यहाँ परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। मैंने मोदी जी को भी लिखा था पत्र इस बारे में। मैंने कहा मोदी जी, आप बेकार में स्मार्ट सिटीज की तरफ मत भागिए, आप स्मार्ट सिटीजन्स बनाइए, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। फिर वो विलेज के अंदर रहेगा या सिटी के अंदर रहेगा, जहां भी रहेगा, ही विल लिव स्मार्टली, स्मार्टली फॉर हिमसेल्फ, स्मार्टली फॉर द नेशन। लेकिन सरकारों का एक चलने का अलग तरीका होता है। लोग 50-50 करोड़ 10 राज्यों को दे दिए, भाई स्मार्ट सिटी बनाओ, स्मार्ट सिटी बनाओ। अभी उनको भी नहीं पता कि उसका क्या करना है। तो हमारे को इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए वो अपने सिटीजन के अंदर करनी चाहिए, उसके अंदर संस्कारों की इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें जो हमारे इन सेमिनार्स में चर्चा में आती हैं, दे विल बी टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली अगर बालक के अंदर संस्कार होंगे, क्योंकि वो इविल्स की तरफ नहीं जाएगा। आपने जिक्र किया गर्ल जीटीज जो आएंगी वो ड्रग्स की शिकार है, वो गर्ल्स नहीं, बॉयज का भी यही हाल है। आज एक बालक को बेल नहीं मिल रही, आज एक बालक को बेल नहीं मिल रही और सारा देश का मीडिया उसके ऊपर बवाल मचाए हुए है, बेल नहीं हो रही, बेल नहीं हो रही, बेल नहीं हो रही। हर चीज उसके ऊपर केंद्रित हो गई, देश में कोई डेवलपमेंट नहीं रह गई, क्योंकि उस बच्चे को बेल नहीं मिल रही, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग बहुत उत्तम क्वालिटी की होने के बाद भी संस्कार विहीन थी। तो ये चीजें, मेरा केवल एक ही पॉइंट है, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए नहीं लाए मुझे कोई सरोकार नहीं। 7 साल से आपने कुछ किया देश में, नहीं किया, विकास किया नहीं किया, मुझे कोई सरोकार नहीं। कृपया जो 135 करोड़ हैं उनको अच्छे नागरिक बनना सिखा दीजिए, उनको देश के लिए जीना सिखा दीजिए। बहुत सारी चर्चाओं से हम बच जाएंगे और बहुत सारे बवाल देश में कटने से बच जाएंगे। मैं बस इतना ही संकेत में कहूंगा। सब कुछ तो कह दिया आपने। बहुत खूबसूरत। मनी बहुत देर से शांत बैठी है। मनी, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सब्जेक्ट को लेकर? जब ये सब्जेक्ट सुना पहली बार तो क्या रिएक्शंस मन में आए? खिलखिलाता हुआ एक फीमेल का चेहरा, लेकिन उसमें हाँ वही साइकोलॉजी है और उसके पीछे वो खिलखिलाहट को बरकरार रखने के लिए जो हेल्प चाहे परिवार की हो या समाज की हो या सरकार की हो, वो इम्पोर्टेंट है। और नहीं, बाकी नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये खिलखिलाते हुए चेहरे को हम रिफ्यूल खुद क्यों ही क्यों नहीं कर सकते? हमें वो पीछे वाला सिस्टम चाहिए क्यों, सपोर्ट सिस्टम? हाँ, क्योंकि हमने अपने को खुद ऐसा बनाया है ना, हमें सपोर्ट सिस्टम की नीड होती है। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कई बार लोग आते हैं कि हमारी एक 50 साल की महिला कहती है कि बस आई वांट माय लाइफ बैक,
तो कहती लाइफ बैक क्या, लाइफ तो आपके पास ही है, गई कहाँ थी जो बैक कर दूं? जैसे मैं बताती हूँ, उसे जी नहीं, वो जी नहीं। अब ट्रेन भी जब चलती है तो वो रिफ्यूलिंग के लिए स्टेशंस पर रुकती है। फीमेल्स आर लाइक ट्रेन। अगर ट्रेन रिफ्यूल करती है खुद को, उस रिफ्यूलिंग पर बड़ा बवाल है। वो रिफ्यूलिंग चाहे किसी भी टर्म में हो, रिफ्यूल मत करो, चलती रहो। तो मेरा मतलब है कि हम इतने सेल्फ स्टार्टर क्यों नहीं हो सकते कि हम अगर खिलखिला सकते हैं तो लगातार हम ही खिलखिलाते रहे और वो सपोर्ट हम खुद से ही जनरेट कर लें। हाँ, वो उस एक्सेप्टेंस की कमी है। जैसे अभी हम इसमें लें मनोविज्ञान, अभी बात एक मैम ने करी कि हमें प्रॉब्लम होती है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन होता है, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो हमें क्या जरूरत है कि कोई और ये कहे कि हाँ तुम डिप्रेशन में हो, पागल हो गई हो, सटक गई हो? क्यों भाई? क्या हमको कोई बताता है कि आज लिपस्टिक लगा लो या आज लाल बिंदी लगाओ या हरी लगाओ? नो। तो इफ यू आर हाँ, वो दैट इज मैटर ऑफ डायग्नोसिस। हाँ, अगर किसी को डिप्रेसिव फील हो रहा है, किसी को कोई डिसऑर्डर फील हो रहा है, अपने को आप फील कर रहे हैं कि यू आर इनटू एंजाइटी, सो डोंट वेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली और एनीबॉडी एल्स इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। खुद उठिए, डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट कराइए, बिकॉज दिस इज नॉट जिसका ट्रीटमेंट नहीं है। बट ये जो मिथ है कि साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास वही जाता है जो पागल होता है, उसने रोक के रखा है कि अगर हम चले गए और घर में पता चल गया कि साइकोलॉजिस्ट के पास गए थे या साइकेट्रिस्ट के पास गए थे तो क्या कहा जाएगा? क्या तुम पागल हो गई जो गई थी? तो इस मिथ को तोड़े, इस मिथ से बाहर आए। और जो महिलाओं का जो नारी मनोविज्ञान है, जो उसमें किसी को इतनी लिमिट उन सबकी हर चीज की एक तय करके रखे, किसी को लिमिटलेस ना होने दे। कोई भी रिश्ता हो, कुछ हो, जैसे अभी दीपक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, संस्कार। लेकिन आजकल संस्कारी परिवारों में भी ये नहीं हो रहा है। पोस्ट कोविड अभी मेरे पास ही किसी का काउंसलिंग के लिए केस आया, संगठन से ही है वो व्यक्ति। बोले दीदी आपसे बहुत दिनों से बात करना चाह रहे थे, बाई चांस मैंने ही उनकी कॉल 2-3 बार पिक नहीं करी थी, कहीं बिजी थी। तो उन्होंने कहा मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास होके आया हूँ क्योंकि एट टाइम्स मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, पोस्ट कोविड बहुतों के साथ हो रहा है और 99% लोगों के साथ हो रहा है। तो बोले नहीं, मैटर ये नहीं है कि मैं भूल जाता हूँ, मैटर ये है कि अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो जो पीछे से मेरी बीवी, बच्चे या माता पिता जो मजाक उड़ा रहे हैं तब से, उससे मुझे लगता है कि बेटर है मैं न्यूरोलॉजिस्ट का कोर्स कर लूं। जो मुझे वो टैबलेट्स दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स दे दे, वो बेटर है, उससे मैं सोता रहूं। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक। डॉक्टर चित्रा सिंह दिख नहीं रही हैं या नहीं? तो सियान जी सरकार से क्या 5 चीजें कहेंगे महिलाएं भारत की खुश रहे? हेलो, हाँ जी, मैंने कहा कि सरकार को क्या सजेशंस हैं आपकी तरफ से? WHO को 2-3 बातें जो अभी डिस्कशन से निकली भी हैं। मैं एक चीज से कहता हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट अलग चीज है और साइकेट्रिक अलग चीज है। अभी हमारे यहाँ बहुत लोग नहीं समझते हैं। दूसरा, 90% डॉक्टर्स साइकोलॉजी और की जरूरत, की साइकोलॉजिस्ट की जरूरत और साइकेट्रिक की जरूरत को उतना अधिक नहीं समझते हैं। अभी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर था, उससे मैंने कहा कि आपको अपनी वाइफ को साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और मैं बल्कि उसको एक दिन ले गया, उसको दवा से फायदा भी हुआ। तो वो मुझसे बहस करने लगे कि मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो मैंने कहा मेरे दोस्त की पैर टूट गया है, आप उसका ऑपरेशन कर दीजिए। तो बोले पैर का ऑपरेशन मैं कैसे कर सकता हूँ? तो हमने कहा जब आप साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं तो पैर का ऑपरेशन भी करिए, या उसके लिए मना करिए, क्योंकि हर एक की लाइन अलग है। जो दिमाग के अंदर इम्बैलेंसेज आ जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छे केमिकल्स आ गए हैं। तो जहाँ पे केमिकल की जरूरत है वो केमिकल से ठीक होगा, और जहाँ सलाह से साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है वो सलाह से ठीक होगा। हम लोगों को लेडीज के लिए जरूर ये सरकार से मांग करनी चाहिए कि हर शहर में हर जगह साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक अलग होने चाहिए, जिसके पास महिलाएं जा सके और अपनी समस्याएं खुल के बता सके। दूसरी बात शायद थोड़ी आप लोगों को ऑकवर्ड लगे,
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महिलाओं के लिए, उनके लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था नहीं है। अच्छे से अच्छे मार्केट में आप चले जाइए, उनके लिए रेस्ट रूम्स की व्यवस्था नहीं है, जो गवर्नमेंट की तरफ से हर अच्छे एरिया में होनी चाहिए। और अच्छे सेंटर्स में कुछ ऐसे पार्क भी होने चाहिए जहां वो लोग कभी जाएं तो आराम से खुल के उठ बैठ सकें, क्योंकि इस तरह का जो रिलैक्सेशन उनको जरूरत होती है, तो उनको घर दिखता है और घर आज के दिन 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर है, तो वो लोग नहीं जा सकते। तीसरी चीज मैं आपसे एक शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा टैबूज है, उसमें भी मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि जाना जरूरी है, हम लोग जाना नहीं चाहते। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, एक चीज, सॉरी, अगर हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाएं तो फिर से इसी लिंक से कनेक्ट हो जाइएगा प्लीज, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। हम लोग मैंसुअल पे बात करते हैं, और हम लोगों ने लायंस क्लब की तरफ से एक स्कूल में कार्यक्रम रखा था। हम लोग 10 मेल लायंस गए थे, वहां कम से कम 70 लेडीज थी, कानपुर में लड़कियां भी थी, छोटी लड़कियां भी थी। तो थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज किया वहां पर मेल में मैं अकेला हूँ, बाकी सब एक एक करके बाहर निकल गए। हमने कहा, मैंने सबको बाहर जाके जबरदस्ती पकड़ के लाया। मैंने कहा, एक तरफ हम लोग ये कह रहे हैं कि इस टैबू को हमें खत्म करना है, कि जब घर में ये बात लड़की को करनी हो अपने बाप के सामने करे। हम लोग यही चाहते हैं ना